Hello friends, the topic which we are going to discuss today is returns to scale. It is also known as पैमाने के प्रतिफल. We have already discussed production function, the law of variable proportions, isoquant curve, isocost line, least cost combination of factors, output maximization for a given level of outlay. Today we will discuss the topic returns to scale. Returns to scale is related to long run period. As we know, production function is of two types: short run production function and long run production function. Short run production function talks about the law of variable proportions, in which it is assumed that one factor is variable and other factors are fixed. But when we talk about long-term production function or returns to scale, in this, all the factors of production are variable. So, यदि हम अल्पकालीन उत्पादन फलन की बात करते हैं तो अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत हमने देखा था परिवर्तनशील अनुपातों का नियम. परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत उत्पादन का एक साधन परिवर्तनशील था जबकि अन्य साधन स्थिर थे. आज हम बात करेंगे रिटर्न्स टू स्केल की या दीर्घकालीन उत्पादन फलन की. दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत हम पैमाने के प्रतिफल की व्याख्या करते हैं. तो पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत उत्पत्ति के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं. इसके पहले आइए हम देखते हैं कि स्केल का क्या मतलब होता है, प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है. In this figure, first figure, we have shown labor along the x-axis, capital along the y-axis. ST line and LK line, these are the proportion. These show the proportion. OP line, which originates from the origin, which is 45-degree line, shows the scale. This proportion line, when we move along the ST line, the amount of capital is fixed in this, but amount of labor is increasing. But when we move along the LK proportion line, here the amount of labor is fixed, but the amount of capital is increasing. Here we can say in proportions, variable factor proportions can be used, but under scale, fixed factor proportions are used. As we can see in this line of scale, both the factors labor and capital are increasing. तो यहाँ पर ST रेखा जो है हॉरिजॉन्टल है, ये अनुपात को दिखा रही है. LK रेखा ये भी अनुपात को दिखा रही है. इसमें हमने माना है, ST रेखा के अंतर्गत हमने माना है कि पूंजी जो है वो स्थिर है और श्रम के अनुपात में परिवर्तन हो रहा है. दूसरी ओर हमने LK रेखा पे माना है कि श्रम स्थिर होता है और पूंजी में परिवर्तन होता है. इस प्रकार प्रपोर्शन के अंतर्गत साधनों के एक परिवर्तनशील संयोगों का प्रयोग किया जाता है, अनुपात का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्केल के अंतर्गत साधनों के एक निश्चित अनुपात का ही प्रयोग किया जाता है. Let's discuss our topic, which is returns to scale. Returns to scale refers to increase in output when output is increased by increasing all the factors of proportion, all the factors of production in the same proportion. पैमाने के प्रतिफल से तात्पर्य होता है जब उत्पादन में वृद्धि उत्पत्ति के सभी साधनों में समान अनुपात में वृद्धि के द्वारा की जाती है, तो ये कहलाता है पैमाने के प्रतिफल. और पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत उत्पत्ति के सभी साधनों को परिवर्तनशील ही माना जाता है. ये तीन प्रकार का होता है: कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के वर्धमान प्रतिफल, एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल,
पैमाने के घटते प्रतिफल या ह्रासमान प्रतिफल। तो पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल या पैमाने के स्थिर प्रतिफल की बात करते हैं। यहाँ पे IQ1 और IQ2 दो आइसोक्वेंट कर्व हैं। ये दिखा रहे हैं कि जब लेबर और कैपिटल इनपुट को जब हमने डबल कर दिया है यहाँ पर, तो हमारा आउटपुट भी डबल हो गया है। We can say when we make increment in input 2 times, output also increases 2 times. दूसरी ओर यदि हम बात करते हैं increasing returns to scale की बात करते हैं, तो इस फिगर में दिखाया जा रहा है कि जब हमने इनपुट को डबल किया है तो आउटपुट हमारा increases more than that. हमारा इनपुट जो है वो डबल करने पर हमारा आउटपुट जो है वो 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। या हम अन्य शब्दों में कह सकते हैं when an increase in inputs leads to more than proportionate increase in output, that is called increasing returns to scale. एक थर्ड फिगर दिखाता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल या पैमाने के घटते प्रतिफल को ये दर्शाता है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जब इनपुट को डबल किया जा रहा है तो आउटपुट उससे कम इंक्रीज कर रहा है। इनपुट के डबल करने पे आउटपुट में जो इंक्रीज है वो डबल ना होकर के उससे कम हो रही है। या हम कह सकते हैं यदि हम इनपुट को 10% बढ़ाते हैं और आउटपुट हमारा 8% ही इंक्रीज करता है तो दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल और पैमाने के घटते प्रतिफल कहलाता है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। थैंक यू।